Okay. So I cannot see students. They have, I think, because they have Wi-Fi problem. Okay. So wherever Wi-Fi is good, they can switch on the video, and wherever there is a problem, they switch off. Otherwise, there will be a problem in the the network. Okay. So I'm Please sharing start. the. Yeah, I'll share the screen. Hope my screen is visible to all. Yes. Okay. Yes. Okay. So let's start with a mantra, as it's a ritual for my class, theory or practical, whatever I take. I start with Om Sahana Bhavatu. So let's close eyes and chant with me. Take a deep breath. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly open your eyes. Let's start. So the day one includes, as per your syllabus, what is disease, type of disease, chronic, acute, a complete system of health. What is yoga therapy? योग है क्या, health क्या है, और yoga therapy की need क्या है for the present time. And concept of yoga therapy, which texts which are included. Three main texts are included to tell us the concept of ill health. Okay, and on the basis of those concepts, we develop yoga therapy for each category of diseases. So that we'll talk later, but today we'll understand the concept on which the yoga therapy is based. Okay. So, an integrated approach of yoga therapy, which is a Vyasa's technique. So, let's start the first topic. Before jumping into what is disease, so let's understand one or two slides regarding health. So, health क्या है? I hope you understand both Hindi and English, right? दोनों में मैं both दोनों में मैम हिंदी भी थोड़ा. Yes, you are comfortable, ना? ठीक है. Okay, so WHO की body, you know, बहुत एक सबसे बड़ी बॉडी जो कि जिनेवा में इनका वो है, हेड ऑफिस है, और 1946 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिफाइन किया था कि हेल्थ को हम डिफाइन करेंगे कैसे. इसके 4 पैरामीटर्स लेंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल. एंड जब 1946 में वो हुआ, इस पे पूरी बैठक हुई, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई. And when it was coined, the word health was defined as per WHO was, it's a complete state of physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. और इसमें चौथी डायमेंशन ऐड हो जाती है, स्पिरिचुअल डायमेंशन. ओके, स्पिरिचुअल डायमेंशन जब ऐड हो जाती है, as per this WHO website, you will not find the word spiritual as yet. But in Vyasas, I have done my PhD long back in 2008 I completed, और 2003 में जब ज्वाइन किया था तब से लेके 2008 तक I kept on hearing from Dr. Nagaratna, one of the deans of yoga and health sciences there, a very well popular name in yoga field, so you must have heard. So she used to tell that spiritual word bhi hai isme, but I keep searching for it in the WHO website. So I consider spiritual word social well-being के बाद add होना ही चाहिए, but as per the website definition of WHO, they don't mention it in the website, but in the conferences, whatever they have documented, they do include the word spiritual, because spiritual dimension gives the completeness to the health parameters. अगर spiritual नहीं होगा तो आपकी soul consciousness picture में नहीं आती है. And when you talk about yoga therapy, you touch that Anandamaya kosha. Okay? The last kosha
पंचकोशा आपको शायद पता होगा, पंचकोश विवेक अगर किसी को अच्छे से नॉलेज है तो द फिफ्थ कोशा इज आनंदमय कोश, द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. सो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ओके, everything includes in that panchakosh viveka. So WHO की definition तो it talks about complete state of physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. That was coined in 1946, and it is clear from this definition that health and ill health are not two discrete entities. They are not two separate कि आज हम healthy हैं और कल हम ill health पे चले जाएंगे because हमारी headache हो जाएगी. You cannot consider yourself suddenly that you know you are ill, you are falling into ill health because you are having a knee pain. Okay, so they are just states of your physical health. थोड़ी देर के लिए आपको कोई पेन महसूस हुई है, थोड़ी देर के लिए आपकी easiness से हट के वो status है, थोड़ी देर के लिए, but it will come back to normal health. Okay, so you can't consider yourself to be a patient when you're having a small pain, ache here or there. So it is clear from this definition that health and ill health are not two discrete entities as commonly understood, and it is a continuous function indicating the state of well-being. So it's a continuous functioning of the body where your some cells are not healthy and other cells are superb, so you are feeling overall healthy. Okay, अभी भी अगर हम देखें हमारी डाइजेशन चल रही होगी, है ना, तो मसल्स पे हमारी जो एक्सट्रीमिटीज है, पेरिफेरी है बॉडी, उस पे ब्लड फ्लो कम जा रहा है और हमारी स्टमक पे ज्यादा जा रहा है बिकॉज इट इज अ पोस्ट लंच टाइम. सो इमीडिएटली आफ्टर लंच योर ब्लड इज activated or diverted to more towards the digestive organs rather than your periphery of the body, your arms, your legs, your brain. वहां पे इसका ब्लड का जो फ्लो है वो कम है और डाइजेशन की ओर ज्यादा है. सो यू कैन नॉट से कि यू आर falling into ill health in your brain or in your legs or in your arms because the blood is diverted more towards the digestion. That's a smartness of your autonomic nervous system, autonomic systems of the body कि वो अपने आप स्व इच्छा से डाइवर्ट हो जाती है फंक्शन. ठीक है, where the neurotransmitters have to work more, they will work more. Okay, डिमांड ऑफ द सिचुएशन पे हमारी बॉडी अपने आप बहुत अच्छे से स्मार्टली कोप अप करती है. सो नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ? फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, प्लस स्पिरिचुअल. दैट वी एज अ योग, अगर हमें योगा थेरेपी सीरियसली लेनी है, सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग कि हम सोशल के बाद स्पिरिचुअल डायमेंशन को ना भूलें. ये चारों कैटेगरीज, बल्कि 5, इमोशनल भी होना चाहिए इसमें, इंटेलिजेंट है. Have you heard about IQ, EQ, so many things today? ठीक है, IQ is intelligent quotient, EQ is emotional quotient, और अभी जो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है that is AQ, adversity quotient. How well you can cope up with this pandemic, how well you can cope up with the epidemic which is going on. Okay, so what is disease? अब आपकी सिलेबस से कुछ पॉइंट्स लेते हैं. The first point to discuss was what is the disease. So it's everybody knows actually. So but to put into formal words, I have taken few definitions and the cause and in humans what disease means. So a disease is a abnormal condition that negatively affects the structure or function of all or part of an organism. Diseases are associated with specific symptoms and signs. We all know. अब कोई मुझे बता सकता है सिम्टम और साइन में क्या फर्क है? Tell me. Anybody? Ma'am, symptom means I think जो कि deduct already we feel that ये problem है और इसके ये symptoms already आ चुके हैं. Sign is basically a temporary mode कि we feel we analysis कि ये हो सकता है. I think, ma'am, this is as per my logic only. This is a myth, yes, right? Yeah, ma'am. Okay. Okay. Anybody else? Symptom होते हैं लक्षण, right? अगर हिंदी में बोले symptoms होते हैं लक्षण. जी, और जी मैम. साइंस होते हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के साइंस नहीं देते हम, साइन बोर्ड लगा हुआ है, आपको राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है,
सपोज आपको अक्षरधाम मंदिर देखना है तो आप यहाँ से राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे, सो इट इज आउटर। हाँ मैम साइन डिसीज होने से पहले दिखते हैं एंड सिम्टम डिसीज होने के बाद? नो 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 No, 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 no. ओके And symptomatic, ठीक है, अब मैं बता देती the हूँ। person already has the disease, right? Yeah. Symptom means the person already has a disease. ओके, और साइंस? आई एम आस्किंग यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। Sign is that he may have it. He may have that disease. Okay, so let me explain. देखिए, साइन इज द आउटर फिजिकल बॉडी पे आपको क्या पेशेंट का दिख रहा है, स्पेशली कहीं इंजरी है, कहीं स्वेलिंग है, कहीं टेंडरनेस है, हाथ आप यहाँ पे अगर पफीनेस है, साइनसाइटिस है तो आपको यहाँ पे हल्की रेडनेस भी होगी, पफीनेस भी होगी। थायराइड के पेशेंट्स है तो आंख एकदम बाहर को प्रोट्रूड करेगी, ठीक है। कुछ सिम्टम्स दिखते नहीं है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर कैन सी, बट जो डॉक्टर्स देख पाए, ठीक है ना, आउटर योर बॉडी का, ठीक है, आउटर बॉडी पे जो वो देख पाए, दैट आर साइंस एंड सिम्टम इज व्हाट। मैम आवाज कट रही है। See, can you see this? Can you see the screen? Yes, ma'am. Zoom पे नहीं आ रहा। हाँ, लो जरा। Yes, ma'am. So I'll show you the slides like this then, ठीक है? And I'll keep on speaking. Okay? Is that clear? Can you see the slide? Ma'am, it's not so legible. Basically, you're not able to see. not readable. हाँ मैडम, Okay. है। मेल कर दीजिए इधर Yeah, से। it's okay, ma'am. Now it's readable. Yeah, we can. ठीक है? Concept of disease, Anadi. I'll anyway explain you. So just focus on this. Instead of seeing my face, at least कुछ तो दिख रहा है आपको, colorful. It's better, ma'am. We can see. Okay. I'll continue. Concept of disease, Anadija Vyadhi. So they can be infections, injuries, toxins. Okay. So the cause is outside. It can be drugs. It can be over intake of the toxins like alcohol. Okay. The smoking. It can be outer. The cause is outer, and the remedy is also outside. Okay. Remedy stitches. अगर किसी को बहुत ज़्यादा shoot up हो गया है, blood flow, you have to take medicines. There is no, immediate relief. Okay. So where allopathic is required, hats off to allopathic. And where yoga therapy is required, hats off, salutes to the yoga therapy remedies. So let's talk about concept of Anadija a little more. What is the role of yoga in Anadija? Yes, very much. Environment tolerance बढ़ती है उससे. योग करने से immunity strong होती है. You get into more, more of your defense mechanisms strong by doing asanas, pranayam, high intake of oxygen during your pranayam practice. And in during antibiotics जो आपको बहुत ज़्यादा आपका infection के chances और बढ़ जाते हैं later stage पे, because it attacks on the liver, it attacks on the pancreas. Antibiotics is not good to have actually. तो इसके बाद अगर आप योगा करेंगे
तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी. इट विल स्ट्रेंथन योर सेल्स ऑफ योर whole immune system, white blood cells, platelets. It will get stronger and more in number. Okay, so this is required. Now Adhija mein what we have, congenital diseases, normal, in normal man there is a fear of death. You all know, ठीक है, fear of death रहता है हर एक में कि हाय कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं मेरी प्रॉपर्टी खो जाएगी फिर क्या होगा, ठीक है, मेरे बाद मेरे बच्चे इसका कैसे संभालेंगे. फियर ऑफ डेथ ऑलवेज हैंगिंग ऑन द नेक. सो ऐसी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सारा, बीमारी होना, बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल. अ योगी मस्ट नॉट फियर ऑफ डेथ. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आफ्टर क्रॉसिंग 50-60 एटलीस्ट वी हैव सीन सो मेनी डेथ्स इन वन लाइफ टाइम, तो वी कम क्लोजर टू दैट फैक्ट ऑफ लाइफ. बट इन यंग age you do have fears. So one of the most dreaded fear is fear of death. This also comes under सारा आदिजा व्याधि. बेसिक जो हमारे डर है, cycle of birth and death. ठीक है, the cause is this and the remedy is what? अब cause आपका पुराने कर्मों से रिलेशन रखता है. ये congenital diseases होना, cycle of birth में बार बार birth and death के cycle में आना. So the cause is this and the remedy is only one, which is self-realization. कैवल्य state of mind जो कि सिद्धियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने प्राप्त की है. कैवल्य स्थिति होना मतलब शून्य में चला जाना आपका माइंड. So as if the mind doesn't exist at all. Okay, you are living in the higher consciousness, higher plane of consciousness. So that is achieved by जीवन मुक्ता या ब्रह्म ज्ञानी. ये सब आपने टर्म्स सुनी होगी जो कि हमारी योग फिलॉसफी में आती हैं. तो ये कुछ बाहर नहीं है. योग थेरेपी, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स एंड दे लाफ ऑन इट कि अगर आपको ये आपके क्लिनिक में अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कोई डायबिटीज ठीक करने आएगा, तो कोई अपना अस्थमा ठीक करने आएगा, तो कोई अपनी नी पेन लेके आएगा, कोई अपना साइनसाइटिस, कोई माइग्रेन, कोई हार्ट की बीमारी. कोई भी आपके पास इसलिए नहीं आएगा कि आप उनको समाधि चाहिए, राइट? ऐसे तो नहीं आएंगे ना, ओ हमें समाधि चाहिए, हमें वही दे दो. फर्स्ट ऑफ ऑल उनका यही एम होगा, ओहो मेरी यहाँ दर्द है, पहले वो ठीक हो जाए, बाद में सोचेंगे. ये समाधि क्या होती है, हमारे अंदर नहीं जाते. दे विल नॉट बी नोइंग एंड दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड एट ऑल. Whereas the main aim of doing yoga practices is kaivalya, is mukti, is moksha, is nirvana, is this vairagya, absolute vairagya from the material world. So further going into what modern definition of stress is and what modern this says, modern stress is related to the ailments as we have understood in आदिजा. अब इसके आगे अगर हम सामान्य की देखें, कॉमन प्रॉब्लम्स देखें, तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स इस लेयर पे यानी कि मनोमय लेयर. कैन यू सी दिस डायग्राम? हाफ, हाँ है तो आधा ही. अच्छा, नाउ इट इज क्लियर. ठीक है. So the stress begins at this level actually. This is the third layer to our existence. ये हो गई हमारी physical self, ये हो गई हमारा प्राणमय कोश. और इसके बाद जो red color में जो मैंने दिया है, this is taken from one of the Vyasa slides. So this indicates the red यानी कि danger area of our existence. इसको हम अच्छे तरीके से divert भी कर सकते हैं और ये हमें बर्बाद भी कर सकता है. इतने हद तक हमारा मनोमय कोश चंचल है कि हम इसको अच्छे तरीके से भी इसको गवर्न कर सकते हैं और ये बुरे तरीके में. तो देखिए एडिक्शंस है जो लाइफ की, वो तो हम एकदम से फिसल सकता है दिमाग. ओ स्मोक एक बार किया, 2 बार किया और फिर वो हैबिट बन जाती है. जबकि आप इस हैबिट को अगर इम्प्रूव करना चाहें तो इसका अगर एंटीडोट देखें तो एक पर्सन अगर भगवत गीता के श्लोक चैंट करे या कुछ भी उपनिषद उठा के पढ़ना शुरू करें, whatever religion you belong to, if you have a good habit of reading philosophy, तो you will be closer to this wisdomful layer of yourself. ना कि आपका दिमाग बार बार एडिक्शन पे जाएगा या फिर आपको आपके फ्रेंड्स ने अगर आपको स्टिमुलेट किया होगा, चलो आज पब चलते हैं या चलो आज स्मोकिंग करके देखो, एक बार तो करके देखो. अगर आपका अच्छा बेंड ऑफ माइंड होगा, अगर आपके संस्कार स्ट्रॉन्ग है, अगर आप ज्यादा जल्दी फिसलते नहीं हैं
आई शुड से, ठीक है। तो आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग है, यू विल नॉट बी यू विल बी एबल टू डिसाइड इन योर लाइफ व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। तो आपका विज्ञानमय कोश इतना अच्छा डेवलप्ड है कि आप मनोमय कोश पे बिल्कुल भी आप उस टाइम पे डिसाइड ठीक से कर पाते हैं, और मनोमय कोश की ना सुन के विज्ञानमय कोश की सुनते हैं आप। ओके, so this is where you should decide and where your Vijnanamay कोश comes into picture. And then the situation, आदिजा व्याधि होती क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ में लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, बहुत देर से हम दुविधा में हैं। आपने अगर पतंजलि योग सूत्र के सेकंड चैप्टर में आसन की बेनिफिट्स पढ़े होंगे तो फर्स्ट बेनिफिट इज ततो द्वंद्वा, तो ततो द्वंद्वानविघातः, सो दैट इज हैविंग टू माइंड्स, मैं करूं या ना करूं। डिसाइड आप कर ही नहीं पाते, आपका माइंड वेवर होता रहता है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, ये मैं खरीदूं कि ना खरीदूं, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा रहेगा। तो बहुत ज्यादा डाउटफुल माइंड होना, ओके, उसको भी काटता है। आसन करना हमारा इतना पावरफुल हो जाता है और इतने अच्छे बेनिफिट्स देता है। वन ऑफ द बेनिफिट्स व्हिच पतंजलि योग सूत्र हैज हाइलाइटेड और ही हैज मेंशन्ड, ऋषि पतंजलि हैज मेंशन्ड इन सेकंड चैप्टर इज ततो द्वंद्वानविघातः, मतलब आपका माइंड में डाउट ही नहीं रहता है, आपको कोल्ड हॉट टेम्परेचर्स भी कोई इफेक्ट नहीं करते, आपकी डिसाइडिंग फैकल्टी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप जिस पे डिसाइड करते हैं और फिर वो हासिल करके रहते हैं विद वन सिंगल पॉजिटिव माइंड। ओके, so there are no conflicts in the mind. And Rishi Patanjali in the first chapter 32nd sutra explains about dukkha dormanasya angame jayatva shwasa prashwasayoho vikshepa sahabhuva। इस चित्त विक्षेप यानी फिर आपके डाउटफुल माइंड के बाद जो आपको अंदर से जो सिम्टम्स आते हैं, दे आर, आप पेन में होते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आपके दौर मनस्य मतलब आप इसी फेज में चलते रहते हैं काफी दिन, महीने, साल, दैट वेदर आप उसमें उस पेन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। एंड देन अंग में जयत्वा, दे आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द बॉडी व्हिच come into picture, and according to Patanjali Yoga Sutra they are the 5 symptoms which your body experiences after a long standing stress। बहुत देर से आप किसी दुविधा में थे और वो स्ट्रेस बनता गया, और फिर वो कैसे निकलता है बॉडी से, चाहे वो दुख के, पेन की सिम्टम से निकले, यानी कि बहुत ज्यादा आपको पेन हो गई है, नी में आ गई है, शोल्डर में आ गई है, सिर में आ गई है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड पेन होती है। अनएक्सप्लेन्ड मतलब आपको पता नहीं लगता, अरे अचानक से सिर दर्द हुई और फिर वो हैबिट ही बन गई, और आपको पता नहीं था कि आपकी कितनी देर से आप उसी सोच में हो और आपकी ये अचानक से सिर दर्द आ गई। ये अचानक वाली कोई बात नहीं होती, बड़ी देर से आपके माइंड में दुविधा ही चल रही थी, जो कि आपके मनोमय कोश से आ गई प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश से आ गई अन्नमय कोश में। ओके, अब आपकी जो फूड बॉडी है, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो हमें दिखती है कि मैं अगर ऋतु हूं तो मैं पतली दिखती हूँ, दुबली दिखती हूँ, और आप अगर मोटे हैं तो आप मुझे मोटे दिखते हैं, बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड सेंसेस। मेरी आंखों को जो दिखाई देता है मैं वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ, है ना, जो मुझे फिजिकल सेंस में दिख रहा है। सो दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व मतलब आपकी बॉडी में शिवरिंग होना, हल्की सी शिवरिंग होना, और आप कभी कभी तो ये शिवरिंग इतनी बढ़ती है कि आपका अगर स्ट्रेस बढ़ गया है तो आप चाय का कप भी ठीक से पकड़ के पी नहीं पाएंगे, चाय का भी कप आपका थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, यहाँ तक आपको नर्वसनेस बढ़ जाती है। एंड देन श्वास प्रश्वास यो चित्त विक्षेप सहभुव मतलब श्वास प्रश्वास मतलब ब्रीदिंग में आपकी डिस्टर्बेंस होना, यानी कि इनहेलेशन ज्यादा हो जाना या एक्सहेलेशन ज्यादा हो जाना, आपकी जो इरेगुलरिटी ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है, सामान्य नहीं रहती है, और ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ते हैं जब आप बहुत ज्यादा देर से आपके मन में कोई ना कोई विचार आपको तंग कर रहा है या स्ट्रेस बढ़ा रहा है आपका। एंड देन भगवत गीता एक्सप्लेन्स ब्यूटिफुली इन 2 श्लोकास ऑफ सेकंड चैप्टर, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सो कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे? ऑब्जेक्ट की सेंसेस से, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। इफ यू कैन सी दिस लैडर, आई हैव क्रिएटेड दिस लैडर टू एक्सप्लेन दिस 2 श्लोका, ब्यूटीफुल श्लोका विच एक्सप्लेन्स कि हमारा
जो ध्यान है पहले एक ऑब्जेक्ट पे केंद्रित होता है कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है, सेंसेस को आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी. इफ यू हैव गॉन टू अ मॉल, कैन यू सी द स्लाइड? आई डोंट थिंक सो. मैंने फोकस करा हुआ है, इफ यू कैन सी. चलिए कोई बात नहीं. Yes, we can Yes, see. ma'am. Yes. Okay, good, good, nice. So from object of senses, so ध्यायतो विषयान, विषय पे, किसी एक विषय पे, it can be a thing, it can be a place, it can be a point of aim of your life, कि आपको उस पे पहुंचना है, इस सीट पे पहुंचना है, आपको सीईओ बनना है, आपको सीओओ बनना है कंपनी का, वहां तक आपका एम है, तो आपको वो एम अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, उसके बाद अट्रैक्शन बढ़ गई, अटैचमेंट बढ़ गई कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए वो चीज. ठीक है, I usually take an example of a very small thing. You have gone to a mall and you have liked that this कुछ भी object of your senses. It can be a purse, okay, a pink purse for ladies, and it can be a nice pair of shoes for gents. Okay, आपको वो ऑब्जेक्ट इतना पसंद आ गया है कि अटैचमेंट बढ़ रही है, बट आपकी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर पा रही है उसको खरीदना. डजंट मैटर, अब आपका डिजायर बढ़ता है कि ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे चीज पसंद आए और मैं खरीद ना पाऊं. आई अर्न मोर फॉर दैट. ठीक है, आई नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग मोर मनी विद मी, या नेक्स्ट टाइम आई सैक्रिफाइस दीज मेनी थिंग्स टू टेक दैट वन कॉस्टली थिंग फॉर मी. सो डिजायर बढ़ गया. अगर वो नहीं मिल पाता, ये इतना एक डेंजर पॉइंट है लाइफ का, अगर आप डिजायर इतना बढ़ा के रखेंगे लाइफ में, अगर आपको वो नहीं मिल पाता है तो इट विल बी एंगर स्टेज ऑफ माइंड. गुस्सा बढ़ता है, फिर क्या बढ़ता है, डिल्यूजन, और भी कंफ्यूजन बढ़ जाती है. अब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज्ड मेमोरी हो जाती है. बुद्धि नाशात प्रणश्यति तक ये स्टेज पहुंच जाती है जब आपका एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान टिका था, उसके बाद वो अटैचमेंट में बदला, अटैचमेंट बढ़ी डिजायर में, डिजायर फिर बढ़ के आ गया गुस्सा, फिर गुस्से से डिल्यूजन बढ़ता है लाइफ में, कंफ्यूजन बढ़ती है लाइफ में. ओके, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड इवन मंडेन थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड in your life because you are having lack of that some one object in your life, and then inability to reason out. बुद्धि नाशात प्रणश्यति. सो श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से भगवत गीता में कैसे एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो अटैचमेंट ही है वो सारा कारण बन जाती है कि आप अपनी लाइफ में फिर बहुत डामाडोल रहते हैं, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बन पाते, और धीरे धीरे आपकी मेमोरी लॉस तक हो सकता है. ठीक है, यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर, इतना आपका मेमोरी तक बात पहुंच जाती है अगर आपकी लाइफ में विषयों को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है. सो इट्स ऑल अबाउट मटेरियल वर्ल्ड एंड योर डिजायर टू हैव दैट मटेरियल थिंग्स इन योर लाइफ. So Bhagavad Gita's explanation how stress affects a normal individual goes like this: Dhyayato Vishyan Pumsaha Sangasteshu Upajayate Sangat Sanjayate Kamaha Kamat Krodho Bijayate Krodhat Bhavati Sammoha Sammohat Smriti Vibhramaha Smriti Vibhramshat Buddhinashaha Buddhinashat Pranashyati. Can you keep it more on this side? We can't read the whole thing. It's half. Now, Little more on your right side. Yes, this is proper, ma'am. Yes, thank you, ma'am. अब पढ़ा जा रहा है. I hope it's clear now. Yes, ma'am. I am doing the work of a cameraman also. I like interactive sessions, but अब आपकी हंसी, आपकी डाउट क्लियर से सुनाई नहीं दे रहे because you have to be on mute mode and I have to be on unmute mode. So I'll only laugh, so listen my laughter also. Okay. ठीक है. So now I hope it's clear. Good, you pointed out. Actually, नहीं तो मुझे तो I will take for granted that you are reading, despite of my efforts to hold the mobile in my hand. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. स्टेजेस ऑफ आधीजा व्याधि. स्टेज 1 नाउ. मनोमय कोश में इम्बैलेंस बढ़ता है तो क्या सिम्टम्स बढ़ते हैं बॉडी में? वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस. नो मैटर आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, इवन अगर आप 20 के भी हैं, अगर आपको किसी स्ट्रेस ने कभी तंग किया है लाइफ में कि आप सोचते रहे उस बारे में और आपको मिला नहीं है और फिर बेचैन रहे, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेज 1 होल्ड्स अनिद्रा, इनसोम्निया, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना, इनडिसिसिवनेस, अनिर्णय की स्थिति होना, इमोशनल आउटबर्स्ट. यू आर सो मच इमोशनल कि आप घर आए, अगर आपको बॉस ने सुबह डांटा है तो आपका सारा गुस्सा आके वाइफ पे या हस्बैंड पे या बच्चों पे
या बड़ों पे निकल गया, राइट? सो दिस इज द डिजीज 1 इन प्रोग्रेशन, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपने ब्रेक लगा दी, अगर आपको किसी ने बैठ के समझा दिया प्यार से कि देखो ऐसे गुस्सा नहीं करते, इतनी बेचैनी किस बात की है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, दिस एक्चुअली मस्ट गो ऑन इन आवर फैमिली सिस्टम, क्योंकि फैमिली है जो हमें बॉन्डेड भी रखती है. If we have good life partner, if we have good grown up kids who can sense that okay आज पापा मूड में नहीं है, या आज मम्मा का मूड ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बात है. So if they are good sensors, you know, around you, that you have, then you are lucky to have good family support system that they can you know take you out from that emotional state of mind. But अगर ये डिप्रेशन में बढ़ जाए या फिर अगर ये एंजाइटी में बढ़ जाए तो देखते हैं आगे क्या होता है. लॉन्ग स्टैंडिंग स्पीड बढ़ जाती है दिमाग की, ठीक है? यू कैन, नोबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट दैट टाइम. आपकी मन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है, राग आपकी लाइफ में इतना बढ़ जाता है या द्वेष आपकी लाइफ में इतना बढ़ जाता है कि आप अनकंट्रोलेबल स्पीड से आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है. एक बार मन की अस्थिरता बढ़ गई, उसके बाद ये किस पे इफेक्ट डालता है? प्राणमय कोश पे. प्राणमय कोश की स्पीड अगर इम्बैलेंस हो गई तो प्राणिक ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं. सबसे पहले आपको सिम्टम डाइजेशन के आते हैं या फिर ब्रीदिंग के सिम्टम्स आते हैं. ब्रीदिंग डिस्टर्ब रहेगी, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, डाइजेशन में पुअर डाइजेशन हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी या फिर आपको ओवर भूख लगेगी, बहुत तेज भूख लगेगी. अगर आपने सुना होगा जो लोग स्ट्रेस में हैं या तो बहुत खाते हैं या खाना छोड़ देते हैं. Right? You must have heard this. Even you must have experienced some point of your life. और अगर उनकी weak system है digestion का तो कुजीर्णत्वम. So there are 3 words. अजीर्णत्वम poor digestion हो जाना, अतिजीर्णत्वम मतलब over digestion हो जाना. कभी कभी डायरिया भी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है, जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं लाइफ में. और फिर कुजीर्णत्वम मतलब irregular digestion होना, कभी होना कभी ना होना, और इरेगुलरिटी होना, और आपका स्टमक क्लियर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, ठीक है. देन स्टेज 2 क्या है? ब्रीदिंग में प्राणमय कोश में इम्बैलेंस होता है, ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है और थोड़ी थोड़ी शरीर में दर्दें रहना शुरू हो जाती है. कभी कभी आपको सिर दर्द, बट आपको पता ही नहीं है कि इसके रीजन क्या है, कारण क्या है. और हमेशा थकान रहना, कभी लेग्स में थकान, कभी हाथों में थकान, कभी शोल्डर्स नहीं ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक है. सो देयर इज सम stress which has gone into your pranamay kosh now. Okay, so which area of the body gets affected? My slide is clear, I think. Which area of the body gets affected? It is either or from your hereditary. अगर आपकी हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स की तरफ से आपकी बीपी की प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, या डायबिटीज की प्रॉब्लम चल रही है, या ओबेसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इवन एज वर्स एज कैंसर, ठीक है, तो आपको उस एरिया में बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. प्राणिक इम्बैलेंसेस सेटल डाउन इन अन्नमय कोश एज ऑर्गन डैमेज. इंजर्ड ऑर्गन पे आपको इफेक्ट आ सकता है. आपने सुना होगा कभी चोट लगती है तो बार बार उसी सीजन में चोट की दर्दें दोबारा से उमड़ आती हैं. Right? So if you have got a sudden this accident, so the same bone will ache after few months again in that area because you were having stress in your mind. और ये प्राण में imbalance हो जाता है, प्राण में कोश का imbalance ऐसे दिखता है. Okay? So stage 3 comes to organ damage, as if अगर suppose मैं example लूँ कि आपकी digestion weak है या फिर आपको बहुत जल्दी आपका पेट खराब हो जाता है, आपने स्ट्रेस लिया हुआ है लाइफ में, तो how it percolates, you can get acute gastritis, you can have chronic gastritis. अगर बहुत देर तक आपका स्ट्रेस, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस है, तो आपकी मसल लेयर तक, ये स्टमक मसल लेयर है, अंदर की जो लाइनिंग है हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग, जो कि इतने गहरे HCl तक को निगल जाती है, उससे भी अफेक्ट नहीं हो पाती. बट अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये लाइनिंग, हमारी स्टमक लाइनिंग धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू हो जाती है और फिर वो ब्लड इरप्शन होने शुरू हो जाते हैं. अगर ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो गया तो आपको स्टेज 4 पे पेप्टिक अल्सर या और तरह की कॉम्प्लिकेशंस, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स शो करना शुरू हो जाता है. ये तो हो गई आपकी एक ऑर्गन की वीकनेस की सिम्टम. अगर आपको साइनसाइटिस है, आप प्रोन हो हेडेक्स के, तो आपको साइनसाइटिस या माइग्रेन में आपके स्ट्रेस दिखना शुरू हो जाता है. अगर आप प्रोन हो, आपकी नीज वीक है, शुरू से ही आपकी लेग्स पतली पतली सी हैं बट आपकी ऊपर वाली बॉडी हैवी है,
ठीक है, कुछ लोगों की बोन्स स्ट्रांग नहीं होती, थोड़ी वीक होती हैं, और आपकी अपर बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, वेट बढ़ रहा है, बट आपका सारा असर नीज पे आ रहा है, तो नीज पे पेन पहले आएगी जब आप स्ट्रेस में हैं. ओके, so now for a diseased person there are two choices, clear cut two choices for a person. क्या चूज करेगा वो अपनी लाइफ में? बहुत जल्दी इलाज कराना है तो वो एलोपैथिक को ही भागते हैं मोस्टली, है ना? यू ऑल आर विद मी, आई थिंक यू ऑल अग्री. अगर आपको बहुत जल्दी फास्ट रिलीफ चाहिए, और अगर आपकी एक्चुअली फैमिली इन्फ्लुएंस भी होता है, कभी वाइफ बोलेंगी तो कभी हस्बैंड बोलेंगे नहीं नहीं एलोपैथिक को दिखाओ, तुम्हारा तो बड़ी देर का ये चल रहा है. सो एलोपैथिक हैज अ फास्टर रिजल्ट, सो यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड टू गो टू एलोपैथिक डॉक्टर. एंड एलोपैथिक ड्रग्स क्या होती है ना, वो हमारे को सप्रेस कर देती है. हमारी जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं, सबसे पहले तो पेन किलर्स हैं जो बहुत ज्यादा कल्प्रिट बनते हैं बाद में लिवर की प्रॉब्लम के, पैनक्रियास की प्रॉब्लम के, शुगर प्रॉब्लम के. बहुत देर तक कोई पिल्स ले रहे हैं, हेडेक हुई डिस्प्रिन ले ली, हेडेक हुई बहुत सारी डिस्प्रिन के इक्विवेलेंट भी आती है, मुझे तो नाम भी पता नहीं है, बट कुछ लोगों की पर्स में ही रहती है ये पेन किलर्स, कि उनको थोड़ी सी भी हेडेक है, कुछ है, तो दे विल टेक पेन किलर. सो व्हाट हैपेंस, किलिंग द फॉरेन बॉडीज बाय टेकिंग पिल्स. एक चॉइस आपके पास ये है कि आप फॉरेन बॉडीज को किल कर दो ड्रग्स लेके या पिल्स लेके, मेडिसिन लेके, एलोपैथिक वो दवाइयां लेके. दे डेवलप एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी अगेंस्ट द, हाँ, first choice is this, killing the foreign bodies. Second choice is to develop the antibodies and to develop your immunity against the foreign invasion. ठीक है, बीमारी एक है, इसके दो तरह के इलाज हो सकते हैं. हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, हमारी इन्फ्लुएंसेस पे डिपेंड करता है कि हम किस डॉक्टर को या फिर किस थेरेपी मोडालिटी पे अपना वो करते हैं, फेथ रखते हैं. सो फॉर योगा थेरेपी ऐसा कॉमनली देखा गया है कि 90% ऑफ द पेशेंट्स विल बी ट्राइंग सो मेनी थिंग्स बिफोर कमिंग टू द योगा थेरेपिस्ट. ओके, डिड यू गेट इट? पहले वो सबसे पहले एलोपैथिक को ही ट्राई करेंगे, और अगर वो नेचुरल मोड से तरीके से ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सबसे पहले आयुर्वेदा पे जाएंगे. ठीक है, आयुर्वेदा अगर वो काम कर गया, वेल एंड गुड. अगर उनको वहां पे भी 100% रिलीफ नहीं आया, इधर उधर पूरा करके, पेशेंट की मेंटालिटी में बता रही हूँ, पेशेंट नॉर्मल कोर्स में आपको कोई भी पेशेंट ऐसा 99% आई शुड से ऐसा कोई नहीं है कि जो सबसे पहले योगा थेरेपिस्ट के पास आ रहा होगा कि हाँ मेरे को ना डायबिटीज हो गई थी, मेरी योगा से ठीक होनी चाहिए, इतना अल्टीमेट फेथ रख के योगा थेरेपिस्ट के पास आए. सो द पेशेंट इज ऑलरेडी गॉन टू सो मेनी डॉक्टर्स, he has been not convinced, or he has been not treated 100%. After getting dissatisfied from their treatments, they have come to you now. So you are going to rescue them from their chronic problems. ये chronic हो चुकी होती है जब तक हमारे तक patient पहुंचते हैं as a yoga therapist. Okay, so to kill is much easier and convenient. ये हम सबको ही पता है, एक गोली खा लें तो हमारी सिरदर्द ठीक हो जाएगी, आधे घंटे में सब गायब, और फिर से दोबारा सिरदर्द आ जाएगी, फिर से गोली खा ली, फिर से गायब. ठीक है, ये एक साइकिल हम क्रिएट कर देते हैं जो चलता रहता है, चलता रहता है. सो टू किल इज मच इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट देन डेवलपिंग द एंटीबॉडीज. सो बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो सीधा बोलेंगे नहीं मैं योगा से ही ठीक होंगी, मुझे योग करना है. और वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी बचपन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी भी मतलब कैंप्स में कहीं गए हैं, तो उन्होंने 2 दिन का 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया हो, तो उनको थोड़ा फेथ बन जाता है कि हाँ योगा कैन हेल्प. एंड नॉट टू मेंशन बाबा रामदेव जी और हमारे कितने कंट्रीब्यूटर्स जो योग को अब फैला रहे हैं, और बहुत सालों से फैला रहे हैं. अब मीडिया ने थोड़ा और इसकी गति तेज कर दी है, रोज ही टीवी पे आ रहे हैं, आस्था पे भी है, इंडिया टीवी पे भी है, जो हमें रोज अगर सुनने को मिले कि योग से इतने केसेस ठीक हो रहे हैं, तो अब लोगों का फेथ बहुत बढ़ गया है. एंड नाउ द चांसेस आर कि हम 90% से हम 80% पे लोगों को ला सकते हैं कि सीधा ही वो योगा थेरेपी कंसिडर करें, ना कि एलोपैथिक से अपने साइड इफेक्ट्स बढ़ाएं और शरीर को और खराब करें. ठीक है, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एंड आई नेवर स्पीक इल ऑफ एलोपैथिक. आई रियली रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. Being a yoga therapist myself, I consider every kind, because देखो जहाँ पे दिल का छेद है, you cannot say the person कि हाँ जी आप यहाँ पे आके आधा घंटा अनुलोम विलोम करो और आपका अभी छेद बंद हो जाएगा. Is it possible?
It's not possible at all. Where surgery is required, hats off to the doctors, hats off to the surgery department, their surgery is required. अगर एक एस्थमा का पेशेंट है, बहुत तेजी से उसका सांस चढ़ गया है, उसको कहीं पे सीढ़ियां चढ़ना पड़ गया, उसके घर की लिफ्ट खराब हो गई सपोज, व्हाट यू विल से, अब वो आपको फोन करेंगे, व्हाट यू विल से कि आप बैठ के पहले अनुलोम विलोम करिए, फिर आपकी सांस दोबारा वापस आ सकती है। बेचारे की सांस वैसी चढ़ी हुई है और 5 मिनट फोन ना करे तो पता नहीं कितना बुरा हाल हो जाए। तो आप पहले तो उनको यही बोलेंगे ना कि अभी पहले आप जो दवाई ले रहे थे वो ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ जो कराना है, पहले थोड़ी सांस तो नॉर्मल आ जाए। इट्स अ वेरी पिटिएबल कंडीशन इफ यू हैव सीन अस्थमा अटैक, ओ माय गॉड, पेशेंट इतना उछलते हैं, उनको सांस नहीं आ रहा होता, इतनी बुरी हालत। तो उन केसेस में हैट्स ऑफ टू एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बट अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी बॉडी की, आपकी स्ट्रॉन्ग माइंड, आपका आनंदमय कोश, आपका मनोमय कोश, आपका विज्ञानमय कोश कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी वापस आते हैं नॉर्मल कंडीशन में। और आप अगर लाइफ लॉन्ग के लिए योग अपनाएंगे तो ऐसे आपको जो इमरजेंसी वाले केसेस हैं ये आएंगे ही नहीं, ये ऐसी कंडीशंस आएंगी ही नहीं, बिकॉज यू हैव टेकन अ नेचुरल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर योर बॉडी, नेचुरल काइंड। ये हमारे जो आसन्स हैं ये सारे प्रकृति से प्रभावित है, सब कुछ नेचुरल है, इसमें कुछ भी हम आर्टिफिशियल बॉडी में डालते ही नहीं है, ठीक है। सो कोई इन्वेजिव थेरेपी तो है नहीं है कि बाहर से कुछ सुई डाल दी और कर दिया। इतने अच्छे और इतने इंटरेस्टिंग पोजेस हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है योगासन्स में तो इतनी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं इस पे कि हमें एटलीस्ट योगा थेरेपिस्ट को 5-6 अच्छी अच्छी बुक्स लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए रोज के रोज और करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली रीडिंग, यू हैव टू बी अ गुड प्रैक्टिशनर टू टीच दिस थेरेपीज, ओके। और एक एक बीमारी के लिए स्पेसिफिक थेरेपीज होती हैं, इट इज नॉट एवरीथिंग विल सूट एवरीबॉडी, आई थिंक यू ऑल नो दिस। हर एक जैसे एक दवाई हर एक बीमारी का इलाज नहीं होती, वैसे ही एक सेट ऑफ प्रैक्टिस, 4-5 आसन, जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े को भी वही सूट करेगा और जवान को भी वही सूट करेगा, नॉट एट ऑल। So for yoga therapists, it's a greater responsibility to take the case history of the person कि उनको बीमारी की रूट क्या है, जड़ क्या है। कहीं डाइट में तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लाइफस्टाइल चेंजेस तो नहीं करने वाले, वो सारा दिन सीट पे बैठे रहते हैं। आपको सारा कुछ उनको देख के फिर उनको योगा थेरेपी, फिर उनको योगा का जो प्रैक्टिस मॉड्यूल बनेगा स्पेसिफिक टू द डिजीज बनेगा। It is not only about attending lectures and enjoying the lectures. Okay, मैम ने लेक्चर ले लिया, अब हमें पता लग गया कि हम बीपी को कैसे ट्रीट करेंगे। It is not about that. ये तपस्या की बात है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अच्छे से लोगों को सिखा सके और अच्छे से उनका हाथ पकड़ के उनको अच्छे से प्रॉपरली गाइड कर सके कि कहाँ पे कितनी देर तक ये आसन लगाना है, कितनी देर तक ये नेतियां धोतियां करनी है, या कितनी देर तक उनको इस आसन में रहना है, या ये प्रैक्टिसेस कितनी बार करनी है एक सेट में, ये प्राणायाम कितनी बार करना है तो उनको इफेक्ट आए। ओके, इट ऑल डिमांड्स ग्रेट टाइम, ग्रेट तपस्या। ओके, इट इज नॉट जस्ट अटेंडिंग क्लासेस एंड फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। ओके, सो ये एक तपस्या मान के चलिए। अगर आप थेरेपिस्ट बनने वाले हैं तो ये योगा प्रैक्टिशनर, उससे पहले योगा प्रैक्टिशनर अच्छा साधक होना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट मोडालिटी की बात करेंगे, ठीक है। So now killing the foreign bodies is a Western concept. ये जो एलोपैथिक कॉन्सेप्ट है ये हमें सबको पता है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। और ये जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, दिस मैग्नेटोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सारा ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से लोगों को हील करने वाला कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस बढ़ाता है बॉडी की डिजीजेस के अगेंस्ट, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और whereas this western concept, allopathic treatment kills the foreign bodies, it just kills। तो किल करने में क्या है, हमारे हेल्दी सेल्स भी किल होते रहते हैं, बस इतनी दिक्कत है इसमें। तो पर हम अपने हेल्दी सेल्स को क्यों सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है। इसीलिए बेटर है कि हम योग का सहारा लेके कभी बीमार ही ना पड़े, कभी हम ऐसे अनफॉर्चुनेटली कभी कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट साइकोसोमैटिकली वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, so we have time, कितना टाइम हो गया? ओके, 4 तो बज गए। should I continue 10 minutes? Sadanand ji हैं, should I continue sir? Class next, can we please continue next time if it's okay for everyone? मैम अगर आप बेटर है, कोई टॉपिक ज़्यादा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स ओके। 10 मिनट चलेगा ना?
Sir, we have a class now. Okay, 4 हाँ o'clock मैम, you have a class. कोई बात नहीं है, आप 10 मिनट करके अपना क्लोज टाइम कर ले दीजिए सकते मैडम। हैं, कोई बात नहीं। Okay, 10 I'll मिनट take 5 minutes. यस ठीक यस है? मैडम, क्लोज कर No problem. या ओके मैम। ठीक है, see you can see this logo IAYT, integrated approach of yoga therapy. ठीक है, this helps, this is integrated, क्यों word आया इसमें? This is specially devised for the patients. ठीक है, integrated इसलिए कि हम पंचकोश विवेका को लेके थेरेपी मॉड्यूल बनाते हैं. We just don't treat our this body as a physical body only. So we have 4 more layers to it, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया और आप सबको भी पता है. तो what happens? अब sage Vasishta in Yoga Vasishta tells a beautiful definition, mana prashamanupaya yoga ityabhi dhiyate. So yoga is the skillfulness how to calm down the mental waves. जो हमारी mental waves चलती रहती हैं, इसकी slowing down ही योग है. Yoga is chitta vritti nirodha, I think you all know. ठीक है, योगा इज टू गेन मास्टरी ओवर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड. चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यानी कि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि मेंटल वेव्स को कंट्रोल करते 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 जीरो डाउन कर देना थॉट्स. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू भगवद गीता वी हैव 2 फेमस डेफिनेशंस, समत्वम योग उच्यते एंड योगः कर्मसु कौशलम. आई होप यू ऑल नो दिस बेसिक्स. अगर आपने पहले फाउंडेशन कोर्सेज करे हैं योग पे तो आपको हो नहीं सकता कि आपको ये वाली डेफिनेशंस आपने ना सुनी हो. Still, I'll share the slides so you will get the matter also. And the summary is to relax the body, शरीर को आराम, slowing down the breath, धीरे धीरे breath को control में लाएं, calm down the mind. अगर breath control में आ गई तो mind अपने आप धीरे 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 slow होना शुरू हो जाएगा. आपकी जो 40 waves आ रही हैं, जो 1 मिनट की जो एक वो है स्टैंडर्ड लिमिट, तो वो लिमिट आपकी धीरे धीरे 30, फिर 20, फिर 10, फिर 5 यहाँ तक भी आ सकती है. ओके, एंड नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ योगा थेरेपी? आई होप यू ऑल आर कन्विंस्ड कि योगा थेरेपी इज मच मच रिक्वायर्ड. योगा थेरेपी एक्ट्स ऑन द माइंड एंड नॉट ओनली द बॉडी. रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे जाके डिजीज को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसके रूट्स पे जाके उसको इफेक्ट होता है. बिकॉज रूट यू ऑल आर कन्विंस्ड कि हम मनोमय कोश से हम ट्रैवल करेंगे प्राणमय कोश, फिर प्राणमय कोश से बीमारी हमें पकड़ में आती है जब अन्नमय कोश तक पहुंच चुकी होती है. ठीक है, तो ये हम फिर योगिक काउंसलिंग सेशंस लेते हैं पेशेंट्स का, उसमें हम थोड़ा डिग आउट करते हैं कि उनको आखिर क्या तंग कर रहा है मेंटल लेवल पे जो कि उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई है. ओके, सो देयर आर योगा काउंसलिंग सेल्स इन फ्यू हॉस्पिटल्स आल्सो, but typically where I did my PhD, Dr. Nagaratna, in her clinic, if you are coming to her for the first time, if you are a patient, if I consider you as a patient, अगर आप पहली बार उनकी क्लिनिक में जा रहे हैं, आपका रिसेप्शनिस्ट आपका पूरा लेगी केस हिस्ट्री, उसके बाद जब आप मिलते हैं नागरत्ना दीदी को, she will take at least minimum 45 minutes with you to discuss with you कि कहीं मनोमय कोश में दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, दिस इज द वे टू डायग्नोज. एक्चुअली डायग्नोसिस हमारा मनोमय कोश से चलना चाहिए, ना कि सीधा आपने देखा अच्छा यहाँ रेडनेस है, अच्छा यहाँ स्वेलिंग है, अच्छा उन्होंने बोला यहाँ पे उनको पेन आती है. ओके, सो इट्स नॉट ओनली फिजिकल, जो कि हम आजकल के डॉक्टर्स देखते हैं 5 मिनट में वो 500 रुपीज अपनी जेब में रख लेते हैं. राइट, इतना प्रोफेशनलिज्म है डॉक्टर फील्ड में भी कि एलोपैथिक डॉक्टर आपको हार्डली 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आपको बोलेंगे ओके ओके अंडरस्टूड, ये दवाई लिख दी, चलिए जाइए, दैट्स इट. Whereas a yoga therapist needs to know right from the Manomay kosh up till Pranamay and Annamay kosh में क्या क्या दिक्कत आ रही है. Okay, so you need to spend lot of time with your patients, with your clients to get to know कि अगर उनको long standing thoughts तो नहीं disturb कर रही. अगर हम root ही खत्म कर देंगे तो हमारी symptoms भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. So apart from this yoga therapy caters to all koshas. It is under NPI and CAM. NPI is non-pharmacological intervention. ये आपने research papers अगर आपने पढ़े हो तो आपको ये term बहुत familiar लगेगी. और second term is complementary and alternative medicine. जैसे naturopathy है, acupressure है, आयुर्वेदा है, ये सारे complement करते हैं हमारी योगा थेरेपी को. ये कोई भी इसमें dominating नहीं है कि naturopathy करा दी तो फिर योगा required नहीं है, या फिर एक्यूप्रेशर सिर्फ करा दिया तो योगा की कोई जरूरत नहीं है. ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे की. अगर साथ साथ चलेंगे
तो ये ज्यादा अच्छा रिलीफ देंगे पेशेंट को। एंड इफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग, जैसे एस्थमा है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, अगर आपने 2 महीने योग सीख लिया, द इफेक्ट्स विल बी लॉन्ग लास्टिंग। इट इज नॉट कि आपने कल अगर छोड़ दिया क्लास में आना तो आपको एकदम से अस्थमा एकदम से उतना ही बढ़ जाएगा जितना आपने 2 महीने पहले था। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगेन ऑन द राइट। यस, नाउ वी कैन सी इट। यस मैम, थैंक यू। ओके, इफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग, जैसे एस्थमा है, ओबेसिटी है। अब ये कंडीशंस एकदम से अपीयर नहीं होती, इसके सिम्टम्स बढ़ बढ़ के फिर ये फुल ब्लोन प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी लाइफ में, जैसे एस्थमा, ओबेसिटी, थायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, साइनसाइटिस, माइग्रेन, बहुत कुछ, पीसीओडी, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो ये इनके जो इफेक्ट्स हैं, जो योगा थेरेपी के जो इफेक्ट्स हैं, ये भी लॉन्ग लास्टिंग ही होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने आज छोड़ा और कल आप फिर से 20 किलो ज्यादा के हो गए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वी ऑल नो योगा थेरेपी इज लॉन्ग लास्टिंग। नो साइड इफेक्ट्स इफ प्रैक्टिस्ड अंडर प्रॉपर टीचर, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर, प्रॉपर गाइडेंस। एंड योग आहार और योग विहार, ये दोनों बहुत जो युक्ति से किया हुआ हमारा आहार विहार, ये बहुत जरूरी है। जो बैलेंस तरीके से चलना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अच्छी स्लीप होना, अच्छी डाइट होना और अच्छे लाइफस्टाइल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी चीप, इट्स रियली चीप। अगर आप अपने योगा थेरेपिस्ट को 1000 रुपये या 1500 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं और 6 मंथ्स का करते हैं, तो कितनी अमाउंट बनती है, बजाय कि आपने इतने पैसे उस पे खर्च दिए, साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयों पे खर्च दिए, इतने पैसे आपने सर्जरी पे खर्च दिए, इतने पैसे आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स पे वो कर दिए। सो वेयर एज योगा इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट ओनली ऑन द लेग्स, ओनली ऑन द ब्रेन, ओनली ऑन द किडनीज, ओनली ऑन द पैनक्रियाज, है ना। ये तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। इट इज नॉट कि आप सिर्फ अपनी डाइजेशन ठीक करने के लिए योग करना शुरू किया, फिर तो और भी ऑर्गन्स इफेक्ट हो गए ना। सो हाउ मच यू हैव टेकन फ्रॉम योगा, how much the whole body has benefited, not only your stomach, not only your brain, not only your pancreas or liver or kidneys or legs or bones. Okay, all 9 systems of the body get stimulated, get triggered, get improvised with yoga therapy, with yoga. I should not say yoga therapy. एक बार आपने करना शुरू कर दिया, फिर आप पेशेंट थोड़ी रहते हैं, फिर तो आप इम्प्रूव हो गए अपनी हेल्थ में, फिर तो आप नॉर्मल साधक बन गए, और फिर ये योग साधना आगे भी चलनी चाहिए ताकि आप हमेशा के लिए ठीक रहें। Okay, so this I can cater to in the next class. Abhi I was just completing need of yoga therapy. Okay, so here I bring again focus to the opposite side of the screen. Abhi I'll try to mail you Sadanand ji my slides ताकि हम अगली class थोड़ा सा effectively कर सकें। So we'll close here. Yes ma'am, thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। इतना हाँ जी, हाँ हाँ, एक्सप्लेन किया ये सब चीजों, मैम और होपफुली सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रासर जी हाँ सच जी, बताऊं please, कोई मैम, भी मुझे आने दिन याद आ गए। मुरारजी देसाई, आपने वहां से कोर्स करा था? मैम मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी का क्वेश्चन है? हाँ यस मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है तो। हेलो। यस यस। हाँ मैम, आपने स्टार्टिंग में साइन एंड सिम्टम्स का डिफरेंस बताया था, लेकिन उस टाइम पे नेटवर्क का इशू था तो वो सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, साइंस हैं, साइंस होते हैं जो डॉक्टर देख के आपको बता दे कि हाँ आपको इतने हद तक आपकी हड्डी हिल चुकी है, या फिर बाहरी साइंस। ठीक है, साइंस ऑन योर बॉडी, सपोज स्किन प्रॉब्लम है, कितने हद तक आपका एक्जिमा फैला है, बाहर से जो साइंस एंड सिम्टम्स, कितनी स्वेलिंग है बॉडी में। ठीक है, तो आपकी रेंज कितनी है, वो आपका शोल्डर अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पा रहा है। ओके, द डॉक्टर कैन असेस दिस। ओके, बट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज द सिम्टम. So the symptoms are always reported from the patient end, and the signs are always written by the doctor, what he can see at the patient's end. ठीक है, जो देखने पे, सपोज आप डॉक्टर हैं, आप देखने पे पेशेंट को ये बोल पा रहे हो आपकी आईज में बहुत स्वेलिंग है, आज क्या बात हो गई थी, से सोए नहीं। ठीक है, तो वो देखने वाले जो सिम्टम्स है जो दूसरे को नजर आए, स्पेशली डॉक्टर को जिसके पास आप गए हैं, वो साइंस होते हैं जो बॉडी पे दिखते हैं,
और जो पेशेंट एक्सपीरियंस खुद करता है, नहीं नहीं सर मैं अच्छे से सोया था, ये तो मुझे एलर्जी हुई है, ठीक है, ऐसे मैंने कल कुछ मसाले वगैरह कुछ कर रहे थे तो मैंने हवा कर दी और मेरी आंखों पे आ गया वो सारा, तो वो रिपोर्ट करता है कि मुझे कितनी जलन है। डॉक्टर विल नॉट नो आपको कितनी जलन है, कितनी पेन है, कितनी आपकी सफरिंग है अंदर की, है ना, कहाँ कहाँ आपको दर्द फैल रही है, क्या पता आपको सिर में भी आ रही है वो दर्द आंखों से। सो द things, the sufferings or the experiences of the patient are symptoms and the signs are the doctors, what doctors can see. Okay, बाहरी रूप से जो दिखता है वो साइन है और जो पेशेंट फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो सिम्टम है। ओके मैम, क्लियर? थैंक यू। ओके क्लियर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सो शांति मंत्र at the end, close your eyes, let's sit straight. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास अल्टरनेट डे क्लासेस रहेंगी, कल क्लास नहीं है, परसों क्लास रहेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू मैडम। कंटिन्यू चलेगा या अल्टरनेट डे करें? सर मैं कल आई विल कंफर्म यू बाय इवनिंग। ओके ओके मैडम, है ना, टुडे इवनिंग आई विल कंफर्म, तो आप इनको कंफर्मेशन दे दीजिए। मोस्टली ले लूंगी बट स्टिल रात तक कंफर्म करती हूँ मैं, 8 o'clock तक मोस्टली। जी जी जी। ओके मैम, ओके, टेक केयर, ओके, बाय।